Hello, hello students of class 9. So now we will start the second chapter of your commercial studies. Okay, that is your business activities. Okay, in this chapter we will learn meaning, definition of business, characteristics, nature of business activity, types of business activity, meaning and nature of commerce, types of commerce, and interrelationship between trade, commerce, and industry. So let's begin the chapter. हम इस चैप्टर में ये कुछ चीज़ें हैं, we will go through it. हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है? So बाकी सब टॉपिक्स को हम देखें. I should dive in that other topics. First, we need to know that what do we understand by business activities. Okay, so here meaning and definition of business. Business may be defined as commercial activities concerned with production and distribution of goods and services with the purpose of earning profit. बिजनेस का मतलब होता है इट इज़ एन कॉमर्शियल और इकोनॉमिक एक्टिविटी. कॉमर्शियल और इकोनॉमिक एक्टिविटी सेम होती हैं, ओके, विच इज़ कंसर्न विथ योर मनी. जो भी एक्टिविटीज़ मनी से रिलेटेड हो दैट विल बी कंसर्नड एज कॉमर्शियल और इकोनॉमिक एक्टिविटी. क्लियर? सो कंसर्न विथ प्रोडक्शन, एक तो कॉमर्शियल एक्टिविटी होती है, दूसरी कंसर्न विथ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ओके, वेयर द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जहाँ पे किसी चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है उसको मार्केट तक पहुँचाया जा रहा है. सो दैट इज़ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट. मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, विद द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट. इस सब के पीछे मोटिव क्या है? बिजनेस उसी को कहा जाएगा. इट इज़ एन कॉमर्शियल एक्टिविटीज वेयर द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेक्स प्लेस विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट. जहाँ पे प्रॉफिट अर्न करना है, दैट इज business. Clear? Now it involves sale, transfer or exchange of goods and services with the purpose of earning money. जहाँ पे सेल हो रहा हो, सेलिंग हो रही हो किसी चीज़ की, ट्रांसफ़र हो रहा हो एक जगह से दूसरी जगह, गुड्स का, सर्विसेज का, विद द पर्पस. उसके पीछे पर्पस क्या होना चाहिए? टू अर्न मनी. क्लियर? सो दिस इज योर बिजनेस. ओके, जेम्स स्टीफेंसन gave the definition of business that economic activities performed for earning profit are termed as business. जो भी economic activities इस चीज़ को ध्यान में रख के की जाती है that we have to earn profit, that is known as business. So I hope this meaning and definition of business is clear. Next, what are the characteristics of business activities? Business activities की characteristics क्या है? Right? So basically in your book total 7 characteristics are given. In your copy when you will make notes, only write 4 characteristics, okay, but I will explain you all the 7 characteristics. Okay, so first one is sale, transfer or exchange. Now the first characteristics means विशेषताएं. हर इंडिविजुअल की भी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, अपनी विशेषताएं होती हैं. सो हियर यहाँ पे भी हम कैसे पता करेंगे कि किसको बिजनेस एक्टिविटी कहेंगे और किसको नहीं? सो हियर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स. ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. अगर ये चीज़ें किसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, इट मीन्स दैट इज बिजनेस एक्टिविटीज. ओके, फर्स्ट, sale and transfer of or exchange. All business activities involve sale or exchange of goods and services for the production of goods and services for some consideration. Now here वो सारी business activities जहाँ पे goods और services का exchange हो रहा हो या goods and services के production को ध्यान में रख के जो भी activities की जा रही हैं, that is considered as your business activities. For example, if you are cooking food at your home, that will not considered as a business activity. But if you will cook food and if you will sell it to others for earning money or for profit, that is known as your business activities. Next, dealing in goods and services. Second characteristics of business activity is that it deals with goods and services. अगर goods and services नहीं है, आप कोई चीज़
थॉट्स ही एक दूसरे से ले रहे हो, दैट विल नॉट कंसीडर्ड एज बिजनेस एक्टिविटी. फॉर बिजनेस एक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डील विथ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट. अगर आप कोई भी एक्टिव गुड्स या सर्विसेज को डील कर रहे हो, एक्सचेंज कर रहे हो विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, दैट इज नोन एज बिजनेस एक्टिविटी. नाउ एग्जाम्पल्स, गुड कैन बी कंज्यूमर गुड्स एंड प्रोड्यूसर गुड्स. गुड्स कोई भी हो सकता है, कंज्यूमर गुड्स एज वेल एज प्रोड्यूसर गुड. कंज्यूमर गुड्स मीन्स दोज गुड्स विच आर कंज्यूम्ड बाई कंज्यूमर. वो सारे गुड्स जो कंज्यूमर खुद कंज्यूम करता है, टूथपेस्ट, ब्रेड एक्सेट्रा, जो भी चीज़ें आप खुद कंज्यूम मार्केट्स खरीद के लाए एंड यू आर कंज्यूमिंग फॉर योर ओन, दैट इज कंज्यूमर गुड्स. एंड प्रोड्यूसर गुड्स विच इज़ यूज बाई प्रोड्यूसर, जो प्रोडक्शन में यूज हो रहे हैं, मशीनरीज हो गई, लैंड्स हो गए और रॉ मटेरियल्स हो गए, दैट विल बी कंसिडर्ड एज योर प्रोड्यूसर गुड्स. सर्विसेज में आपकी क्या आती है? इंश्योरेंस सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज, ऑल दीज आर द सम सर्विसेज. ओके, नाउ थर्ड, प्रॉफिट मोटिव. ओके, बिजनेस वर्ड जहाँ भी आएगा देयर विल बी प्रॉफिट, वहाँ प्रॉफिट होगा. सो द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस एक्टिविटी इज टू अर्न प्रॉफिट. सबसे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है बिजनेस का? टू अर्न प्रॉफिट. एंड यू नो प्रॉफिट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ और एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस. किसी भी बिजनेस के लिए प्रॉफिट बहुत ज़रूरी है. हाँ, लॉस हो सकता है बट अगेन द प्रोड्यूसर विल थिंक फॉर प्रॉफिट. फिर वो प्रॉफिट के लिए ही वर्क करेगा. सभी को मुनाफा चाहिए. ओके, सो प्रॉफिट इज द मोटिव ऑफ बिजनेस एक्टिविटी. नेक्स्ट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी. राइट, इकोनॉमिक एक्टिविटीज मीन्स योर बेसिकली कंसर्न विथ मनी. जो भी एक्टिविटीज मनी से रिलेटेड है, दैट इज योर इकोनॉमिक एक्टिविटी. इट इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वॉन्ट्स. जो भी प्रोडक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है गुड्स और सर्विसेज का फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वॉन्ट, दैट इज कंसिडर्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज. नेक्स्ट, रेगुलर डीलिंग. रेगुलर डीलिंग मीन्स ऐसा नहीं है कि एक बार आ गया तो हो गया. नो, there should be regular purchase and sale of goods or services in the business organization. Regular होना, आज आया फिर कल हमने बेचा, again we have purchased and then again we are selling, purchasing selling, purchasing selling. So this should be continue. अगर ये continue है business organization में, this is known as regular dealing. Regular dealing होनी चाहिए. So this is regular dealing. Next is your creation of utilities. Okay, next point I have not given written here. Next point is creation of utilities. Creation of utilities means हम कोई प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, we get satisfaction, हमें satisfaction होता है. तो जो भी इकोनॉमी में कोई भी गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, that is for to create utility. वो utility create कर रहे हैं. ओके, कहीं ना कहीं फॉर एग्जाम्पल अभी ब्रेड, नॉर्मल ब्रेड आता है, अभी उसमें कुछ न्यू आइडियाज़ और न्यू एडवांस ब्रेड प्रोड्यूस किया जाने लगे, देन हम लोग क्या करेंगे? फिर उसकी भी डिमांड क्रिएट करने लगेंगे. राइट, हमारी क्या हो रही है? यूटिलिटी. यूटिलिटी मीन्स सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी. मतलब सेटिस्फाइंग पावर बढ़ती जा रही है. हम उस चीज़ से सोचते हैं ये खरीदेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, वी विल बी सेटिस्फाइड. सो ये क्या है? एक बिजनेस एक्टिविटी क्रिएट्स यूटिलिटी. नेक्स्ट इज योर risk. Okay, risk means business and risk both are interdependent, बहुत interdependent है. Okay, risk means uncertainties. प्रॉफिट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, पर बिजनेस में रिस्क इन्वॉल्व होता है. मोर रिस्क मोर प्रॉफिट. ओके, बिजनेस एक्टिविटी हो सकता है आज हमारा प्रोडक्शन अच्छा नहीं हुआ, कहीं ना कहीं कुछ क्राइसिस आया, अभी जैसे कोविड-19 की वजह से इकोनॉमी बहुत डाउन हो गई, बहुत सारे बिजनेसमैन के लॉस में चल रहे हैं. सो इट कैन बी, इट इन्वॉल्व्स रिस्क है. ओके, बट इन फ्यूचर दे मे अर्न प्रॉफिट. सो दीज आर द सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर business activities. Okay, I hope the meaning and definition of business clear. Characteristics of business activities. Now next, nature and types of industry or types of industry I will discuss in the next video. Thank you so much.